and a very warm welcome to all the respected faculty members joining us today. Today's FDP is not just another academic session, it is a conversation about the future of assessment where artificial intelligence meets academic wisdom and where feedback becomes intelligent, adaptive, and meaningful. And for such a transformative topic, we truly need a transformational mind. Ladies and gentlemen, today we are privileged to learn again from such an academic architect, Dr. Rahul Vijay Mohare sir. Sir, we are truly grateful to have you with us today. On behalf of the organizing team and all participants, I extend a very warm welcome to you, sir. We are eager to learn, unlearn, and redesign our assessment practices under your guidance. May I now invite Dr. Rahul Vijay Mohare to kindly take over the session. Thank you, Bhavna. Good evening to all. Good evening, sir. Perhaps my performance yesterday was too poor, so that the audience has already been decreased. Means I humbly apologize to the organizer. Perhaps I'm not giving the things up to mark. This may be one of the reason. I have spoke to Mubina ma'am also that I will definitely try something good for at least for this session, so that it brings some reputation to your FDP also. So, starting with the today's session, the topic which was given to me was like designing AI enhanced assessment and feedback. So, when we are designing AI-based assessment or any assessment, any type of assessment that we are having into our academic, now since we all are the academician, we know that we are supposed to design the assessment. And what we know about the assessment, first thing is like that what exactly we know about the assessment that we are supposed to take. So anyone can answer for this particular question or for this set of questions, not the set of questions, but just a kind of discussion that we all can hold together. First is that what would be the nature of assessment that we want to give to our student. हम लोग अपने बच्चों को मतलब जो assessment देना चाहते हैं उसका nature of assessment क्या होना चाहिए. Since it is for graduation, undergrad or grad only, grad or post graduation only, since MBA is there, तो हम लोगों को क्या चीज देखनी है, मतलब when we are designing our own assessment, हम लोग जब अपना assessment define कर रहे हैं, design कर रहे हैं, तो what all we are supposed to see or what all we are supposed to focus upon is what is the nature of assessment. हम लोगों का nature of assessment कैसे होगा. Next is what should be the assessment mode. हम लोगों का assessment mode कैसा होना चाहिए. Just because it is an AI supported or AI assisted assessment, then we also need to understand कि भैया हम लोग उसको assess कैसे करना चाहते हैं. मतलब what would be the assessment mode. So this is the second variable or second parameter that we should understand and we should answer upon. Next is evaluation logic. What would be the role of AI? How AI would be helping us or supporting us in terms of evaluation of the assessment. तो ये भी हम लोगों को समझना चाहिए क्योंकि हम लोगों को AI को अगर instruct करना है, if we are supposed to instruct the things to AI, so we should be very much clear at our own end that how it would be a logical thing that AI would understand better and could answer promptly and accurately. Then next is the type of data that we are going to handle. हम लोगों के पास data जो भी आने वाला होगा उसको हम लोग कैसे handle करना है. Type of data की जब हम लोग बात करेंगे, जब वो slide आएगी, I'll share my presentation. Then you would also understand that which type of data that we would be having for the assessment. Next is what would be this would be a little more important, that what would be the scoring and grading mechanism. मतलब हम लोगों का scoring और grading mechanism कैसे होना चाहिए. In general, अगर आप कोई assessment देते हैं तो what is your way of scoring and grading? Anyone can discuss upon. मतलब कोई भी participate कर सकता है. Akhil sir is there, Vikram sir is there, Bhavna ma'am is there, Meenakshi ma'am is there, Pradnya ma'am is there, Imran Khan is also there. Manoj Pandey ji bhi hai. Good evening, sir. Good evening, sir. स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म का अगर आपका कोई असेसमेंट आप देना चाहते हो बच्चों को तो आप मतलब कैसे स्कोरिंग करते हो. लाइक वन वे इज लाइक बाइनरी स्कोरिंग, मतलब करेक्ट एंड इनकरेक्ट, दैट इज द ओनली वे वी कॉल इट एज अ बाइनरी स्कोरिंग. फिर
उससे बेहतर और प्रिसाइज और स्पेसिफिक अगर आपको चलना है तो शायद आप थोड़ा और बेहतर कर सकते हो, आप उसको रूब्रिक बेस्ड बना सकते हो। तो वो भी आप लोगों का एक तरीका हो सकता है जिसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं या ग्रेडिंग कर सकते हो, दैट इज द रूब्रिक बेस्ड काइंड ऑफ थिंग। तो जब हम लोग की एक असेसमेंट डिजाइन करते हैं तो वी कीप ऑल दिस थिंग्स इनटू माइंड कि यार हमारा असेसमेंट कैसे होना चाहिए। द मोर डिटेल वी सी इट, जितना डिटेल हम लोग उसको देखेंगे परहैप्स शायद हम लोगों को उतना समझ में आ जाएगा कि यार ये असेसमेंट अगर मुझे देना है बच्चों को, या मुझे फ्रेम करना है, या एआई को मुझे इंस्ट्रक्ट करना है कि एक असेसमेंट कैसे होना चाहिए, तो मुझे क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। मतलब हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यार नेचर ऑफ असेसमेंट कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद असेसमेंट मोड कैसे होना चाहिए, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन लॉजिक, मतलब एआई को अगर असेसमेंट करने के लिए कोई चीज हम लोगों को बोलनी होगी तो व्हाट वी शुड इंस्ट्रक्ट देम, हम लोग उसको क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे या किस तरह से उसने असेसमेंट करना चाहिए। फिर इसके बाद टाइप ऑफ डेटा हैंडल, तो ये मैं कहा था कि जब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली क्या हम लोगों को कहना है। देन स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म, क्योंकि अगर मैं एक असेसमेंट दे रहा हूँ तो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी माय स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म, मैं एज अ पार्ट ऑफ रिजल्ट बच्चों को क्या कन्वे करना चाहता हूँ, और अगर मुझे वो कन्वे करना है तो इन टर्म्स ऑफ ग्रेड कन्वे करना है, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव ग्रेडिंग में मुझे काम करना है, या फिर मैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग के साथ भी काम करूँ, या कैसे मुझे उसको स्कोर करना है, दैट आई ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड। देन द फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जब मैं एआई को बोल रहा हूँ कि यार असेसमेंट मेरे लिए आप मुझे डेवलप करके दीजिए, तो बच्चों ने जैसे ही एग्जाम अपीयर किया, लास्ट सबमिट बटन दबा दिया, तो उनको उसी वक्त इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो कितनी डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देनी है, मतलब आपको सिर्फ स्कोर डिफाइन करके दे देना है क्या, या फिर आपको एक रिजल्ट का पूरा सिनारियो उनको बताना है कि कितने लोगों ने मीन के ऊपर मार्क्स कमाए हैं, कितने लोगों ने मीन के नीचे मार्क्स कमाए हुए हैं, या फिर क्वालिटेटिव असेसमेंट अगर होगा तो आपको ये बताना है क्या कि दिस वेयर द रूब्रिक, एज पर द रूब्रिक परहैप्स यू आर नॉट अप टू मार्क, यू माइट हैव मिस्ड आउट दिस पर्टिकुलर पैरामीटर्स 1 2 3 4 5, आपको कितने डिटेल में उसका फीडबैक जनरेट करना है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी बिहाफ पे करने जाएंगे तो शायद एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, सिंस वी आर इनटू एमबीए, वी आर हैविंग 120 एमबीए स्टूडेंट, परहैप्स 2 सेक्शन ऑफ 60, एंड वी आर फ्लोटिंग वन असाइनमेंट। लेट अस से कि एक केसलेट हम लोगों ने फ्लोट किया है और उस केसलेट को बच्चों ने सॉल्व करके हम लोगों को सबमिट करना है। ठीक है, एक केसलेट मिनिमम 2 पेजेस का भी होगा। अगर मैंने रिलेटिवली मतलब होलिस्टिकली उसको पढ़ने की भी कोशिश की और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट एक केसलेट के आंसर्स मुझे पढ़ने के लिए और समझने के लिए कम से कम 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट का मीनिंग होगा 60 बच्चों की केसलेट के आंसर्स अगर मुझे समझने होंगे तो 600 मिनट। 600 मिनट मीन्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स। 10 आवर्स मतलब अब मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि यार मैं एज अ टीचर ये 10 घंटों को मैं यूज करूं, यूटिलाइज करूं, बर्बाद करूं, या फिर क्या करूं। क्योंकि अगर हर किसी ने बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है या बहुत शानदार तरीके से लिखा है, ये मैं बहुत एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे पेन एंड पेपर में बच्चा लिख रहा है, मतलब बहुत शानदार, सारे बहुत अच्छे रिफाइंड बच्चे हम लोगों के पास है, बहुत होलिस्टिकली उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लिखना चाहते हैं, उन लोगों ने लिखा हुआ है। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा ला दे के सबमिट कर दे। दिस इज वन सिनारियो। सेकेंड सिनारियो ऐसा कि आपने एक असाइनमेंट दे दिया है, लेट अस से फिर से सेम केस दे दिया है और बच्चों ने कोई एक एआई टूल यूज करके आप लोगों को आंसर देके सबमिट कर दिया। अब आंसर देके सबमिट कर दिया है तो अल्टीमेटली वी बीइंग इनटू सच अ प्रोफेशन कि हम लोगों को उसको रीड भी करना है, समझना भी है और उसका मार्किंग भी करना है। अब मार्किंग करते वक्त मैंने इसको मार्किंग कैसे करना है, हाउ आई शुड मार्क और हाउ आई शुड असेस एंड हाउ आई शुड डिफाइन द थिंग्स। मुझे समय कितना जाने वाला है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये अगर मैं सोचूं तो करीबन अभी वाला जो केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसमें कम से कम 10 घंटे तो जाने ही वाले हैं। अगर 10 घंटे का काम मुझे 10 मिनट में करना है या बेहतर तरीके से करना है जिसमें कोई बायसनेस नहीं होगा, अनबायस्ड वे से होगा, बहुत क्रिस्टल क्लियर मुझे ये असेसमेंट भी करना है, साथ ही में मुझे प्लेगरिज्म भी चेक करना है, साथ ही में मुझे एआई का भी चेक करना है। अगर ये सारी चीजें करनी है तो वी वुड डेफिनेटली फ्रेम आवर असेसमेंट विद द एआई असिस्टेंस। हम लोग अपना असेसमेंट एआई असिस्टेंस के साथ ही फ्रेम करेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को ये समझना जरूरी होगा कि हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। मतलब जब मैं असेसमेंट की बात करूंगा तो व्हाट ऑल आई नीड टू कंसीडर। तो फिर नेक्स्ट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों को क्या चाहिए कि फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक कैसे होना चाहिए। मतलब इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम इज ओवर पीपल शुड रिसीव द फीडबैक अबाउट द एग्जाम
and what and how. Next is the reporting and output delivery. तो हम लोगों को क्या रिपोर्ट करना है और आउटपुट डिलीवरी कैसी होनी चाहिए. मतलब आपको मार्क्स में आपने कंसीडर किया हुआ है एग्जाम और आपको रिलीज करते वक्त सिर्फ ग्रेड रिलीज करने हैं, शायद आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बतानी है या फिर आपको और भी कोई समरीज एक्सप्लोर करनी होगी और उसको बतानी होगी. तो आपको कैसे बतानी है, दैट ऑल्सो नीड टू कंसीडर. ये कंसीडर क्यों करना है? ये कंसीडर इसलिए करना है क्योंकि जो एआई असेसमेंट वाले टूल्स है उसका सिलेक्शन इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होगा. Means the characteristics that we are discussing about the assessment leads to better selection of the AI assessment tool. मतलब ये सारा हम लोग इसलिए भी डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्कशन अगर अभी नहीं करेंगे तो ये नहीं समझ में आएगा कि हम लोगों ने एग्जैक्ट टूल कौन सा सिलेक्ट करना है. क्योंकि हो सकता है कोई एक ऐसा टूल होगा कि जो शायद रिपोर्ट जनरेट ना करता हो, कोई एक टूल ऐसा होगा कि जो शायद समरी जनरेट ना करता होगा, कोई शायद एक टूल ऐसे होगा कि जो आप लोगों को ग्रेडिंग करके ना देगा. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जो आप लोगों को ध्यान में रखना है. तो एक और पैरामीटर जो आपको ध्यान में रखना होगा दैट इज कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल. तो मतलब हम लोगों को कैसे उसको कंट्रोल करना है और उसे कैसे यूज करना होगा वो आएगा. फिर उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी क्या होगी जो टूल आप यूज करना चाहते हो. मतलब वो डायरेक्ट गूगल क्लासरूम से डेटा उठाए या फिर गूगल शीट्स से डेटा उठाए या फिर आप सारी की सारी पीडीएफ फाइल उसमें अपलोड कर दे, फिर वो असेस करके आपको स्कोर रिलीज करे. तो उसका इंटीग्रेशन आपके साथ मतलब क्लाउड के साथ हो रहा है या आपका खुद का कोई एलएमएस होगा उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना है या फिर आपको कोई स्प्रेडशीट सपोर्ट चाहिए है, क्या कैसे आपका एआई टूल या एआई असेसमेंट टूल काम करने वाला होगा. तो उसके लिए ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ सकती है. And next is pedagogical alignment. Now, since we are into academics, ये pedagogical alignment हम लोगों को शायद बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि जब मैं असाइनमेंट फ्रेम कर रहा हूँ, मैं उसको ग्रेडिंग कर रहा हूँ और मेरे क्रेडिट्स उस पर डिपेंड करते हैं. तो शायद मुझे ये ध्यान में रखना होगा कि यार इसमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी आ रही है क्या, कोई आउटकम बेस्ड एजुकेशन भी हम लोगों के पास आ रहा है क्या, कोई सीओ हम लोगों का मैपिंग हो रहा है क्या, या फिर वेदर दिस काइंड ऑफ असेसमेंट वुड कंसीडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस और एज अ डिफरेंशिएटर फॉर द एक्रीडिटेशन रेडीनेस. तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखते हुए आप एक एआई बेस्ड असेसमेंट टूल का सिलेक्शन करोगे. So these all are the parameters that we need to consider before we select a particular AI tool. So I'm just sharing my PPT, but before we go that, before we jump into PPT, till this point of time, if you have any question, please do ask. देखो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मुझे हमेशा लगता है. एक तो मैंने इतना शानदार बता दिया कि पूछने जैसा कुछ है ही नहीं, दिस इज वन. सेकेंड इज कि आप हम सब लोग इतने वाइज है कि कैसा भी कुछ भी बता दो हम लोग अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, समथिंग लाइक दिस. तो मुझे मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी ज्यादा अच्छी लगती है. वी ऑल बिलोंग टू अ वेरी वाइज group, we all belong to a very wise network and we all are very humble and gentle and we could consider what other is going to tell us. तो मैं ये मान लेता हूँ कि हम लोग एक बहुत अच्छे ग्रुप में काम कर रहे हैं, राइट? किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है, चलो चलते हैं. I'll share my screen now. Sir, can I ask you a question by the time you share your screen? Yeah, please go ahead. Sir, as I am a PhD scholar, I'm on the verge of submitting my thesis, like pre-PhD submission I'm having. So, sir, along with generating a plagiarism report, there is an AI report as well. Yeah. So, if we'll do this kind of assessment through AI, तो उसमें भी तो वो catch कर रहा है ना कि AI generated report. नहीं, ये असेसमेंट जो है ये मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स असेसमेंट. दैट मीन्स वी बीइंग फैकल्टी वी वांट टू असेस द स्टूडेंट. Okay. So, means the contention is like this only. Means how it would ace to the faculty members. Okay. Got it. It's about like how student would be proceeding ahead with the assessment. Yes. Means how teachers should frame their assessment.
so that it becomes a easy go ride for the faculty member itself, so that it becomes easy for them to frame the test, to assess it, and to generate the result. And sir, if as a PhD scholar, I want to know about this, how then will proceed if the report says it's AI generated, like the analysis part or the result or interpretation. So that is not allowed again in PhD, now. Yes, that is not allowed, but means there is also some way out, but perhaps this is not the right platform to describe that. Means perhaps off late आप फोन कीजिए या हम लोग बात करें तो मैं बता दूं. Sure. I'll definitely give you a call or I'll meet you personally because I'm doing PhD from Ramdev Baba itself. So I would love to connect you. Fine. Please do come and we'll discuss upon it. Sure. Thank you. Okay. So I'm sharing my screen. I hope the things are visible now. Yes, sir. It is very much visible. Okay, fine. Thank you. So this is the topic that we are supposed to discuss today. So just now that what we were discussing is that the nature of assessment. Now, the very first thing that we should understand, because we want to instruct AI that what he should, or the AI tool is going to frame an assessment for us, then we should tell them what is the nature of assessment. Perhaps it would be a qualitative, quantitative, mixed method, formative, or summative. Since we are into academics, we know all the details about all this assessment. It's just a kind of revision that you are also on the same page, and I am also on the same page, that we know what is the nature of assessment that we want to conduct for our student. So either it be qualitative. Qualitative means if you are giving them a case or caselet or any kind of writing work, means if you want that they should write an essay, then you can go with all the things. You can means evaluate the meaning, the depth, and the coherence, as well as creativity. So everything could be done. If it is a quantitative method, then the description is like this, that you are going for the numerical scoring, you go with the objective correctness. If you want to go with the qualitative and the quantitative method, you can use the mixed method. Same goes with formative and summative also. So this all are the different nature of assessment. So whenever we would be issuing a command or we are writing a prompt for AI, then the very first thing is that you need to mention the nature of assessment is like quantitative. The nature of assessment is qualitative, so that the AI would understand it in a very better way, that what is the type of assessment that we are putting for the student, right? So this is the nature of assessment. Then the assessment mode. Now, what would be the mode of assessment? So whether are we going to conduct it in an objective manner, subjective manner, or project based, or adaptive, or peer assisted. So these all are the assessment mode. Means the first two are very common for us. This third one is the performance based, project and simulation. So you would be requiring a project copy or the thesis that they are uploading us, or they are giving to us, and we are uploading that, and then we would be using that for the assessment. So this is the assessment mode. So first is the nature of assessment. Second would be the assessment mode. So we need to remember this as a part of characteristic. मतलब एक कोई सा भी टूल अगर हम लोग यूज करना चाहते हैं, तो हम लोगों को उसको बहुत क्लियरली, बहुत एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भैया हम लोगों को ये चीज करके चाहिए. तो जितना बेहतर या जितना डिटेल में आप उसे बताएंगे, तो शायद उतना बेहतर या उतने डिटेल में वो आपको करके देगा, right? Next is evaluation logic or AI intelligence. Now this is something that we should understand. रूल बेस्ड होना चाहिए आपका पैरामीटर, या स्टैटिस्टिकल होना चाहिए, या मशीन लर्निंग बेस्ड होना चाहिए, या एनएलपी ड्रिवन, या जनरेटिव एआई, या हाइब्रिड. जब मैं रूल बेस्ड करता हूं, तो जहां पे मेरे पास प्री डिफाइंड आंसर कीज होती है और थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती है. सो वी मे हैव द प्री डिफाइंड आंसर कीज और थ्रेशोल्ड वैल्यूज that we would be using. And when we are doing the statistical analysis, अगर मैं statistical analysis use करना चाहता हूँ या statistical evaluation logic use करना चाहता हूँ, तो हर item का मेरे पास एक analysis होता है या threshold होती है. कि जैसे अगर मैं एक कोरिलेशन यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि यार पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा तो इसका मीनिंग क्या निकलने वाला है, या फिर निगेटिव कोरिलेशन आएगा तो उसका मीनिंग क्या निकलने वाला है. अगर मैं बॉक्स प्लॉट के साथ काम कर रहा हूँ, तो बॉक्स प्लॉट में मुझे पता है कि अगर आउटलियर्स हो गए तो मुझे उसके साथ डील कैसे करना है. तो हर चीज का, हर आइटम का एक एनालिसिस आपके पास होना चाहिए या होता है. अगर आप मशीन लर्निंग बेस करना चाहते हो, तो आप पैटर्न रिकॉग्निशन और क्लस्टरिंग, मतलब जब आप करना चाहते हो कि यार टू विच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिस ऑल पीपल शुड बिलोंग टू, अगर आपका
लॉजिकल कंटेंशन ये है, तो आप उसको मशीन लर्निंग बेस्ड इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। तो एआई को ये बताना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन इज लाइक मशीन लर्निंग बेस्ड इवैल्यूएशन। अगर आपका एनएलपी ड्रिवन इवैल्यूएशन होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि सिमेंटिक सिमिलैरिटी क्या होगा या डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होगा। सिमेंटिक इज लाइक रूल्स ऑफ मीनिंग, आप उस चीज को कैसे मीन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एक फनी एग्जाम्पल है, मतलब अगर शेयर करूँ और आप को बताने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल स्टेटमेंट, वेरी सिंपल एंड हिंदी स्टेटमेंट, सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए। इसके क्या और कितने मीनिंग निकल सकते होंगे? एनीवन कैन टेल? Anyone, means all those who are there with me in the session, anyone can tell that a simple statement is there, सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए। इसके कितने और क्या मीनिंग निकलेंगे? More than 2-3 meanings. Okay, like सर को कपड़ा चाहिए पोंछने के लिए, उनको कुछ पोंछना है इसके लिए, सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, उनके ऊपर कुछ गिरा है उसके लिए। एंड सर मीन्स सिर भी एक्चुअली हम कहते हैं हिंदी में, सो हेड इट शुड बी, सिर को पोंछना। मींस the object sir is having multiple meaning, right? Object sir is having multiple meaning. Yes. One is a faculty member, one is forehead, one sir as a person, right? सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, मी एज अ फैकल्टी मेंबर ब्लैक बोर्ड साफ करना होगा तो मुझे शायद ब्लैक बोर्ड पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। Perhaps I am running out of sweat, मुझे सर पे पसीना आ गया होगा, मुझे फोरहेड पे पसीना साफ करना होगा तो उसके लिए कपड़ा चाहिए होगा। मैं खुद कहीं गिर गया होगा, कहीं लोटपोट हो गया होगा और मुझे खुद साफ करने के लिए अपने आप को कपड़ा चाहिए होगा, तो वो भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल मीनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेंटिक सिमिलैरिटी। तो आपको ये बताना होगा कि यार इसमें 1 2 3 4 आइटम वुड साउंड सिमिलर एंड यू शुड कंसीडर देम एज द करेक्ट आंसर। आपको ये बताना होगा कि अगर एक ही चीज के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग निकलते होंगे तो यार उन सारी चीजों का मीनिंग सेम होना चाहिए। ऐसे होता है ना कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे, बच्चा उसको आंसर कर रहा है एंड यू आर लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स एंड वन इज आंसरिंग 2-3 keywords, another is answering 3-4-5 different keywords, then you need to instruct AI that if this particular assessment is having this 4-5-6 keywords, then perhaps you should consider them for the equal assessment. Equal grading should be done for this set of keywords. That is the semantic similarity. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को खुद सोचनी पड़ेगी कि इसको कैसे होगा। Then is generative AI. So this is like rubric based रीजनिंग। कल भी हम लोगों ने इसको देखा था कि इसका हम लोगों को रूब्रिक देना पड़ेगा, उसका एग्जाम एक्सप्लेन भी करके बताना पड़ेगा कि रूब्रिक बेस्ड कैसे होगा। सो एक हैंड्स ऑन अभी जब हम लोग लेंगे तो उसमें भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। देन इज हाइब्रिड, आप ये सारी चीजें इकट्ठा मिक्स कर लीजिए, रूल बेस्ड भी बना दीजिए, मशीन लर्निंग भी ले लीजिए, एनएलपी भी ले लीजिए, यू कैन हैव एवरीथिंग विथ यू, राइट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ डेटा दैट वी आर गोइंग टू हैंडल। हम लोग किस टाइप का डेटा हैंडल करना चाहते हैं जब असेसमेंट की बात कर रहे हैं। आप मतलब बच्चों से कोई सवाल पूछ रहे, बच्चे उसको टेक्स्ट में आंसर ना देते हुए वॉइस मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपको स्पीच को एनालाइज करना है क्या, या फिर आप किस तरह से उसको एनालाइज करना चाहते हो। आप ऑडियो को एनालाइज कर सकते हो, वीडियोस को एनालाइज कर सकते हो, या फिर सर्वे डेटा को एनालाइज करोगे, न्यूमेरिकल डेटा के साथ एनालाइज करोगे, टेक्सचुअल डेटा के साथ एनालाइज करोगे। तो आप किस टाइप के डेटा को हैंडल करना चाहते हो या किस टाइप के डेटा के साथ आपको डील करना है। बिकॉज व्हेनेवर वी वुड बी taking assistance from AI, we need to be very much clear and we could instruct it accordingly. The data that you are using, it's not just the numerical or textual data. Perhaps now you need to consider the audio also. आपको audio भी consider करना है, and you just need to consider कि यार ये audio सही है या नहीं है, इसमें ये keywords आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो आप मुझे लिख के बताइए ये कैसे होना है। Just in case you might come across a situation wherein the student is not able to write anything and you are saying that he should generate an audio. आप audio को तो assess नहीं करेंगे तो फिर आप AI tool को बोल सकते हो कि convert this audio into text in a contextual manner. मतलब same context में जो उस बंदे ने बोला होगा उसी contextual manner में आप उसको लिख के बता दीजिए, तो शायद आपके पास वो एक evidence भी हो जाएगा, आप उसको assess भी कर सकोगे। So everything is possible if you are dealing with the AI. But the only problem is that we need to be very much clear at our own end and we should
ourselves be very clear and should have a clear idea that what exactly we are requiring and what exactly we are looking for. नेक्स्ट इज स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म. ये जब भी हम लोगों ने जब इनिशियल लेक्चर स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बताया था कि यार हम लोगों का ग्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे होता है. हम लोगों ने असेसमेंट अभी दुनिया भर के कर लिए, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के असेसमेंट हम लोग कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, करेंगे बेस के आगे. बट वी शुड नो दैट व्हाट स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म वी आर अप्लाइंग. सो बाइनरी स्कोरिंग इज लाइक जस्ट करेक्ट एंड इनकरेक्ट. करेक्ट मीन्स कंप्लीट मार्क, इनकरेक्ट मीन्स 0 मार्क. जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस दिए हैं, जो सही ऑप्शन लिया तो बंदे ने पूरे मार्क्स ले लिए, और अगर गलत ऑप्शन हो गया तो हम लोगों ने बोल दिया कि वो इनकरेक्ट है, ही वुड बी कैरिंग द 0 मार्क. पार्शियल क्रेडिट मींस स्टेप वाइज ग्रेडिंग, मतलब पार्शियल होगा तो 0.25 मार्क्स होगा, थोड़ा ठीक होगा 0.5 होगा, थोड़ा और बेहतर होगा 0.7 होगा, कंप्लीट करेक्ट दे दिया तो भैया हम लोगों ने उसको 1 मार्क दे दिया. ठीक है, मतलब एक ही चीज के बहुत सारे मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. स्कोरिंग नियर अप्रोक्सीमेशन, जितना एक्यूरेट या जितना अप्रोक्सीमेशन सही उसका बनते जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मार्क्स देते जाएंगे. दैट इज अ पार्शियल क्रेडिट. रूब्रिक बेस्ड मतलब क्राइटेरिया ऑफ लेवल स्कोरिंग, आपने पहले से ही क्राइटेरिया डिफाइन करके रखा हुआ है और उस डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स उसको मिलने चाहिए ये पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है. So if you are deciding that, it is like rubric based. नॉर्म रेफरेंस, आप रिलेटिव ग्रेडिंग पहले से बता दीजिए कि मीन होगा, मीडियन होगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा, कट ऑफ ऊपर नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना वैरी होने वाला होगा फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन. यू कैन डू दैट, आप उसको भी कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग मैकेनिज्म भी होंगे जो आपको एआई के लिए बताने पड़ेंगे. देन इज फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक. आपको बच्चों को फीडबैक कैसे देना है. इमीडिएट फीडबैक देना है तो रियल टाइम रिस्पॉन्सेज जो भी आएंगे तुरंत बता दीजिए. डिलेड फीडबैक मतलब जैसे गूगल फॉर्म में हम लोगों के पास होता है दैट यू कंडक्ट द एग्जाम एंड आफ्टर स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम you generate the responses and you can post it back or you can return it to the student. So it would be like post evaluation and it will be termed as the delayed feedback. आपको descriptive देना है, narrative feedback देना है, आपको बता के देना है कि perhaps this question would be requiring 1 2 3 4 5 things to be incorporated and since you have not incorporated we are making it as a 0. आपको कमेंट करके देना होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव फीडबैक होगा. प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आप इम्प्रूव्ड सजेशन के साथ उसको फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो. तो बताने का बस इतना है कि ये सारी चीजें जब तक कि आप बताओगे नहीं एआई को, एआई इज नॉट गोइंग टू डिफाइन द थिंग्स फॉर यू. मतलब सिंस वी आर मेजरली गोइंग फॉर चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, क्लाउड, हम लोग ये 4 के ऊपर गए नहीं. डीप सीक आया लेकिन डीप सीक इंडिया में उतना ज्यादा पेनिट्रेट हो नहीं पाया या उतना फेवरेट बन नहीं पाया. अदरवाइज डीप सीक इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है. अगर आप उसके मॉडल्स लर्न करोगे तो दे आर रियली वेरी गुड मॉडल. नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग क्वालिटी, रिपोर्टिंग एंड आउटपुट डिलीवरी. आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है बच्चों के लिए, मतलब न्यूमेरिकल आउटपुट देने हैं, आपको एबीसी ग्रैंड मतलब ग्रेड बैंड्स देने हैं, या फिर आप स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ बताना चाहते हो या ट्रेंड्स एंड पैटर्न के साथ बताना चाहते हो. आप उसको कैसे बताना चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा. फिर उसके बाद मतलब आपको उसको रिपोर्ट करते वक्त किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करना है, मतलब पीडीएफ में देना है, एक्सेल में देना है, या फिर आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट करके बताना होगा तो आप वो भी बता सकेंगे. नेक्स्ट इज कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल. तो ये पैरामीटर कौन से हो गए, तो रूब्रिक कस्टमाइजेशन हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं. वेट एडजस्टमेंट, अगर आपको एआई ने डिफाइंड वेट दिया है कि भैया इसको 1 2 3 4 बस इतने ही वेट देंगे एंड यू विश दैट 1 2 3 4 is not my weightage criteria, it would be like 4 then 3.6 then 2.4 and then 1.8. तो फ्लेक्सिबल स्कोरिंग अगर आप लोगों को करना होगा तो वो वेट एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो. डिसिप्लिन स्पेसिफिक मॉडल्स अलग अलग आते हैं. मींस इफ वी आर लुकिंग फॉर स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, तो इसके लिए अलग एआई टूल्स आप यूज कर सकते हो. ह्यूमैनिटीज के लिए अलग यूज कर सकते हो. लैंग्वेज सपोर्ट, नॉट नेसेसरी दैट यू शुड गो विद इंग्लिश ओनली. आप इंग्लिश के ही साथ काम करें ऐसा जरूरी नहीं है, आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हो सकती है जिसके साथ आप काम कर सकते हो. देन डिफिकल्टी कैलिब्रेशन, आप ब्लूम्स लेवल भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि ब्लूम्स लेवल का कौन सा लेवल आपको इनकॉर्पोरेट करना है. तो ये सारी चीजें जब तक कि आप बताएंगे नहीं तब तक के वो काम करेगा नहीं. फिर इसके बाद है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी, आपके एलएमएस के साथ उसको इंटीग्रेट करना है या मूडल के साथ इंटीग्रेट करना है या स्प्रेडशीट सपोर्ट चाहिए या क्लाउड के साथ आप काम करना चाहते हो, डिप्लॉयमेंट मोड कैसे होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पेडागोजिकल
अलाइनमेंट, ये जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है, सताती है। और दूसरा सबसे दिक्कत भरी बात इसमें ये है कि दिस ऑल कम्स वंस द थिंग्स आर ऑलरेडी बीन डन एंड वी डू द रिवर्स इंजीनियरिंग। गंगा हम लोगों के यहाँ उल्टी बहती है और उसी मतलब बहती हुई गंगा में हम लोगों को सफर करना पड़ता है। तो जस्ट लाइक दैट वी नीड टू think upon the Bloom's taxonomy coverage. Just because it is a method of assessment, it should be in an outcome based education. क्योंकि जब मैं AI को असिस्ट करना चाहता हूँ या AI का असिस्टेंस लेना चाहता हूँ, तो मुझे ये भी समझना जरूरी होगा कि यार मैंने आउटकम बेस्ड एजुकेशन की फिलोसॉफी को इनकॉर्पोरेट किया है कि नहीं। मेरे जितने COs है वो इस टीचर्स असेसमेंट में या फिर इस असेसमेंट में मैप हो रहे कि नहीं, ये PO के साथ मैप करते हैं कि नहीं करते। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क मेरा कैसा है कि वो स्किल अलाइनमेंट है या नहीं है। NEP के चलते हम लोगों को आ गया कि यार वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए या फिर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होना चाहिए या कोर पेपर होना चाहिए। तो कौन से स्किल को हम लोग इम्पार्ट कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की मैं बात करूंगा तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कुछ आ रहा है क्या। तो ये सारी चीजें जब तक के ध्यान में नहीं रखोगे, मेरे हिसाब से वो एक प्रॉपर असेसमेंट फ्रेम नहीं कर पाएंगे। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। रेस्ट मींस व्हाटएवर यू हैव योर ओन वे, यू कैन गो अलोंग विद दैट। दूसरा कि यार ये एक्रेडिटेशन रेडीनेस है क्या इसका, कि मतलब ये NAAC के लिए हम लोग जा सकते हैं क्या, या फिर NRIF में एज अ डिफरेंशिएटर हम लोग इसको बता सकते हैं क्या, या फिर NEP में हम लोग बता सकते हैं क्या कि दिस इज व्हाट वाज द मॉडल करिकुलम और मॉडल काइंड ऑफ थिंग एंड वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द सेम थिंग एंड वी आर यूजिंग द सेम थिंग। सो दिस इज समथिंग which is discussing upon or about the assessments characteristic। मतलब जो भी assessment हम लोग लेना चाहते हैं उसके characteristics को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। Like first was the like nature of assessment, second was like assessment mode, third was like evaluation logic or AI intelligence, next was like type of data handled, next was like scoring and grading mechanism, किस तरह से आपको स्कोरिंग या ग्रेडिंग करना है, रिलेटिव ग्रेडिंग करना है, बाइनरी स्कोरिंग करना है, कैसे उसको करना है। फिर फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक, आप बच्चों को कैसे उसका फीडबैक देना चाहते हो। देन रिपोर्टिंग एंड आउटपुट डिलीवरी, आप रिपोर्ट कैसे करना चाहते हो, स्कोर मतलब न्यूमेरिकल आउटपुट देना चाहते हो या फिर आप ग्रेडिंग करना चाहते हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताना चाहते हो, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बताना चाहते हो, ये सारी चीजें। कस्टमाइजेशन कंट्रोल करना है, इंटीग्रिटी करना है आपके LMS के साथ, और पेडागोजिकल अलाइनमेंट करना है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बिफोर वी मूव ऑन, 16 ऐसे AI असिस्टेड टूल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। बट बिफोर वी मूव ऑन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। Mostly we use rubrics and the binary system, right? Binary हम objective type questions के लिए और मतलब मैनेजमेंट में जो हम यूज करते हैं तो ज्यादातर यही दो यूज करते हैं, राइट सर? Yes, but we can change the things now. आप AI असिस्टेंट लेके आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। We are also in practice of that। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोगों का भी लर्निंग फेज ही है। जी सर, everyone is in that learning phase only, so right, so like we are always been advised to make rubrics only। yes. जैसे स्टेप वाइज आपने एक ये बताया, तो ये भी किया जा सकता है। हाँ, ये सूनर और लेटर मैम ये आपको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा। आज नहीं कर रहे हैं, आज गवर्नमेंट इस पे विजिलेंट नहीं है सारी चीजों पे, लेकिन आज जब बच्चा आपके पास आएगा तो डेफिनेटली ही वुड आस्क यू, मैम सेम बच्चे ने ये लिखा हुआ है, आपने उसे 4 मार्क दिए, मैंने लिखे हैं आपने मुझे 3 मार्क क्यों दिए। तो वो जो जस्टिफिकेशन होगा जहाँ पे हम लोगों के लिए भी एक सेटबैक हो जाता है, तो हम लोग अपनी क्लैरिटी अगर ज्यादा रखे तो दैट क्लैरिटी कम ओनली व्हेन वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेसमेंट एंड हाउ बेटर वी आर डीलिंग विद दोस। Right. So for every type of assessment, different kind of assessment that we are doing, the assessment method would be different, right? कि हमको step wise लेना है या rubrics लेना है। Yes, ma'am. जी, okay sir. चलो ठीक है। एक बिफोर आई शेयर दैट, एक बहुत अच्छी मूवी बहुत पहले आई थी, मतलब आप लोगों ने देखी,
होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन उसका गाना बहुत अच्छा चला था। यूजुअली जब हम लोग क्लास में होते हैं और या फिर ऐसे किसी प्रेजेंटेशन में होते हैं तो मुझे वो गाना ना बहुत ज़्यादा याद आता है। मैं वो गाना गा तो नहीं सकता इतना अच्छे से, लेकिन मैं वो गाना ज़रूर बताना चाहूँगा। तारा देशपांडे और निर्मल पांडे जी की एक फिल्म थी, शायद इस रात की सुबह, उसमें एक बड़ा अच्छा गाना होता था। गाना ऐसा था कि चुप तुम रहो, चुप हम रहे, खामोशी को खामोशी से बात करने दो। तो कंटेंशन ये है कि हम लोग सर गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग, सॉरी टू इंटरप्ट टू, बट मुझे हंसी आ गई, बट द थिंग इज कि सर वी ऑल डूइंग द सेम प्रैक्टिसेस एज यू सेड कि एट द एंड ऑफ द things you have to match the CO and the PO, right? Yes, and then you also have to do some attainment kind of things. yes, so we all are doing such practices, but the thing is that the way you are telling, it's simple. What I believe ki the thing is revising with me. sorry, That's all I want, sir. The thing is revising, sir, because whatever you are telling, we are doing the exactly the same thing, but we are not using the AI kind of things. Okay. Now, means if we all are not using, just because we or our institution is having a structured format for that and we are following that, this is one thing. Second, the report is not that flexible wherein we could incorporate these different types of assessment at one go. This is second thing. Next is, since a new assessment would require again the equal weightage of CO and PO mapping, perhaps it becomes difficult for us also to incorporate it into the defined format of the Excel sheet which we all are using. So this is the challenge that we may have while framing a new or different type of assessment, right? So I have found, or I have listed out, I have done a little research on that, and we are having ऑलमोस्ट 16, मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक कुछ जितने पैरामीटर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए या अभी डिफाइन किए हैं या यूज किए हैं या डिस्कस किए हैं, उसको मैप करते हुए कौन से बेहतर AI टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है. आई एम जस्ट शेयरिंग अगेन माय PPT so that you would understand and the titles as well as the details. Okay, so this is the different AI tools which can be used for the assessment. I've just made a simple comparison. एक सिंपल सा कंपैरिजन भी हम लोगों ने बनाया हुआ है यहाँ पे कि कंपैरिजन क्या क्या कर सकता है या फिर कहाँ पे ये एप्लीकेबल किया जा सकता है या फिर कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो इफ यू आर यूजिंग, मींस दिस इज द फर्स्ट 8 AI tools and the other 8 AI tools are like this. तो जो सबसे बेहतर हो सकता है वो हम लोगों ने बताया है. तो NoteGPT AI Grader means this is one AI tool. This is free. Now we need to understand the limitations also. कि अगर कोई एक चीज हम लोगों को फ्री मिल रही है तो perhaps it doesn't come with the full functionality. हम लोगों को वो full functionality के साथ नहीं आएगा. दूसरा, the number of gradings would be limited. मतलब आप कितने students को grade कर सकते हो at one go in one login, perhaps that is also limited. So until and unless the things is not institutionalized, मतलब जब तक कि इंस्टीट्यूशन खुद इसमें इंटरेस्ट लेके इस चीज को इजी मोड में रन नहीं करेगा, परहैप्स आप उस फ्लेवर तक के नहीं जा सकेंगे जितना हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी वैरायटी हो सकती है, इतना कुछ हो सकता है, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली इन द प्रीमियम वर्जन्स. बट स्टिल some free versions are also there for some small set of students. You can always go for that. आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, because this is something differentiator. It may save your time. आपका समय भी बचा देगा, आपके पास क्लियर, एक्यूरेट, अनबायस्ड वे से मैपिंग भी आ जाएगा, बच्चों को भी पता चल जाएगा. There won't be any discrepancies. There won't be any fight for the marks and like this. तो आप अगर यूज करना चाहते हो तो NoteGPT AI Grader है. दिस इज फॉर क्विज ओनली. ये क्वालिटेटिव असेसमेंट के लिए नहीं आएगा. इट वुड बी फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट. ऑटो स्कोरिंग हो जाता है, इसमें फीडबैक नहीं जाता बच्चों को, मींस फीडबैक इज नॉट गिवन. देन रूब्रिक क्राइटेरिया इज लिमिटेड, मतलब उनका खुद का डिफाइंड क्राइटेरिया है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते. अल्टर कर सकते तो हेडिंग अल्टर कर सकते, उसका मार्किंग अल्टर नहीं कर सकते. सो द रिपोर्ट इज लाइक क्विज ओनली. Then assessment mode is asynchronous. आप
कोई सिंक्रोनस नहीं है, मतलब ये किसी आपके LMS के साथ लिंक नहीं किया जा सकता, या गूगल फॉर्म के साथ लिंक नहीं किया जा सकता, या क्लासरूम के साथ लिंक नहीं किया जाता. Or you can just export the MCQs, means the integration is done it in a way that you can export the MCQs only. आप simple MCQs को export कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो. Then the second one is Co-Grader. This is something very good. I'm using this. मैंने इसको use भी किया है. आप में से भी बहुत सारे लोगों ने इसको use किया ही होगा. So this is something good which I have found. कि I found this is something very good for the qualitative assessment. Qualitative assessment के लिए बहुत शानदार टूल अगर आप लोगों को चाहिए तो दिस इज द को-ग्रेडर. यहाँ पे आप रिटर्न असाइनमेंट भी बच्चों के चेक कर सकते हो. इसका गूगल क्लासरूम के साथ भी इंटीग्रेशन हो जाता है. आप वहां से डेटा फेच भी कर सकते हो. यहाँ से जो भी डेटा आप लोगों के पास आता है या रूब्रिक बेस आपका जो असेसमेंट जनरेट होता है वो वहीं से गूगल क्लासरूम के थ्रू आप बच्चों को भी वापस एक्सपोर्ट कर पाओगे. इट इज रूब्रिक बेस्ड. आप आपके खुद के रूब्रिक भी डिफाइन कर सकते हो या फिर ऑलरेडी डिफाइंड रूब्रिक्स जो होते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हो. तो ऐसी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है. सो सेम गोज विद ग्रामरली. AI रीडर इज देयर, लेकिन ग्रामरली का आप सब लोग अगर यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि इट इज लिमिटेड विद वेरी फ्यू इटरेशन पर डे. मतलब बहुत कम इटरेशंस आप लोगों को पर डे मिल जाएगा. यहाँ पे आपका ऑटो स्कोरिंग नहीं होगा, यहाँ पे प्रेडिक्टिव स्कोरिंग होता है. दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न अपॉन. ये आपको हम लोगों को पहले लर्न करना पड़ेगा कि यार प्रेडिक्टिव स्कोरिंग किया कैसे जाता है. बिकॉज ये पहले अगर हम लोगों को खुद समझेगा तो हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि यार ये स्कोरिंग मेथड इस तरह से होती है, इस वजह से आप लोगों को ये स्कोर जनरेट करके मिले हुए हैं. अदरवाइज वो बच्चे हम लोगों के पास आएगी कि आप हम लोगों को बस इतना समझा दीजिए कि ये स्कोर कैसे आया है. परहैप्स we should be in a better position to explain them that how the score is being calculated. Next is it generate the writing feedback. आपको अगर हर चीज का अलग से सेपरेट फीडबैक देना होगा या फिर AI assisted feedback देना होगा. Forget that you don't want to write anything, but looking to what a student had written, the content that he have presented, if you wish that AI should generate a feedback based on his content, then AI would do that. Means Grammarly AI grader is going to do that. So rubric criteria is a writing criteria. आप उसको खुद लिख सकते हो, आपका खुद का rubric हो सकता है और एक बेसिक स्कोर जनरेट करके देगा. इसमें मतलब ज्यादा बहुत फैंसी कुछ आइटम नहीं होंगे जो आप लोग ले सकते हो. ये असिंक्रोनस है, इसमें कोई एक्सपोर्ट रिपोर्ट नहीं किया जा सकता. कीवी ग्रेड एक है, लेकिन ये सिर्फ क्विजेस के लिए अगर यूज करना चाहते हो तो आप कीवी ग्रेड यूज कर सकते हो. क्वेश्चन वेल इज ऑल्सो वेरी गुड. आप क्वेश्चन वेल भी अच्छे से यूज कर सकते हो. ये इसमें ना ऐसे होता है क्वेश्चन वेल में आप टॉपिक डाल दीजिए, इट विल जनरेट द MCQ बेस्ड ऑन द टॉपिक. यू कुड सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विश टू कीप इनटू योर MCQ एंड यू कुड मींस रिमूव द अदर्स. बेस्ट थिंग इज दैट इसमें रैंडमाइजेशन भी होता है. मतलब हर स्टूडेंट को शायद अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाएगा. दे हैव देयर ओन टेम्पलेट. यू कुड डिजाइन द टेम्पलेट एज पर योर ओन इंस्टीट्यूशन. The standards are also been aligned. मतलब आपको COPO मैपिंग करना है या फिर उसका इंटीग्रेशन या अमलगमेशन करना है with respect to outcome based education or Bloom's taxonomy, then also you can do that into question well. The next one means other than co-grader, if I would suggest you to use is Kahoot. Kahoot is also good, but again it would require a premium subscription for that. But if you don't want to go with Kahoot, then the second one I would suggest is the question well. Then ASQ's AI is also good, लेकिन जहां भी ये क्रॉस लिखा हुआ है या दिख रहा है, perhaps that functionality is not available into the given AI tool. So these are the first 8 AI tools. The next is Taskade AI Student Assessment Analyzer. This is also very good. ये बहुत अच्छी चीज है. आप खुद चेक कर लीजिए. आपको मतलब मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. You would love to use this, and it would do all those functionality as that of co-grader. लेकिन इसका थोड़ा इंटरफेस अलग है. को-ग्रेडर मुझे रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा आसान लगा इंटरफेस वाइज भी और मींस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी. मतलब हम लोग अभी उसका एक हैंड्स ऑन भी करके देख लेते हैं. So this all are the different AI tools which are there into market. They are freely available. You can use all those tools for designing your own assessment. But the only thing is that you need to understand how or what characteristics of assessment you are going to incorporate or inculcate while defining the prompt. आप जब भी इसका prompt define करने वाले हो या design करोगे तो आपने क्या क्या चीजें उसमें incorporate करनी है, कितनी characteristics आपको ध्यान में रखनी है कि जिसकी वजह से वो particular
क्वेश्चनियर या फिर असेसमेंट टूल आपका बेहतर होके आपके पास आए, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन, right? So I'll just give a simple demo of Co-Grader. So this is, hope the screen is visible again. Can anyone confirm that the screen is visible? Yes, sir. Sir, I hope today also we'll get the PPT, because the AI tools that you have shared, we'll definitely like to explore them more. Of course. Yes, sir. So Co-Grader AI, you just log in. So this is the first one, AI Essay Grader, very simple. So this is the interface or the screen that we would be having. Then what we can do, we just log in, and now every AI tool or anything that you want to use, they have their Google login. आप आपके Google से ही login कर सकते हो. आप दो लॉगिन तो हर किसी के पास होता है, एक इंस्टीट्यूशन लॉगिन होता है और एक अपना पर्सनल लॉगिन होता है. आप किसी भी इससे लॉगिन कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी आर हैविंग. एक छोटा सा एग्जांपल भी लेते हैं. दिस इज इंटरफेस. नाउ ग्रेड क्लास, अगर आप इसको ग्रेड क्लास कर रहे हैं तो आप क्या जनरेट करना चाहते हो? आप ऐसे ग्रेड करना चाहते हो या क्विज ग्रेड करना चाहते हो, वो एक हो सकता है. फिर क्लासेस, मैंने इसको गूगल क्लासरूम के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो मेरे गूगल क्लासरूम भी यहाँ पे मुझे मिल जाती है. सो दिस इज द गूगल क्लासरूम दैट आई एम हैविंग. ये गूगल क्लासरूम से डेटा किया हुआ है. जब मैं वी वॉल करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी एक्टिव क्लासरूम्स होगी वो यहाँ पे दिख जाएगी, और मैं इसको इंकॉर्पोरेट कर सकूंगा मेरे गूगल क्लासरूम के साथ जो मैंने किया हुआ है, राइट? सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन ऐसे. मैं एक सिंपल सा ऐसे जब क्रिएट करता हूँ, अब मैं स्टूडेंट को कैसे इंपोर्ट करूंगा? तो स्टूडेंट को अगर मुझे इंपोर्ट फ्रॉम गूगल क्लासरूम करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँ कि मुझे क्रिएट करना है, तो इंपोर्ट, एक तो मैं इंपोर्ट कर लूँ गूगल क्लासरूम से. आई ask student to join a Google Classroom, then whatever all the details would be there, क्योंकि हर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, वो किस क्लास को बिलोंग करता है. हम लोगों को भी समझ में आएगा कि हमने क्या असेसमेंट किया है या फिर कैसे किया हुआ है, वो भी हम लोगों को समझ में आएगा. तो गूगल क्लासरूम अगर मैं यहाँ पे कर लूँ अभी, तो यू वुड कम टू सी दैट कनेक्ट टू गूगल क्लासरूम, कंटिन्यू विद गूगल. तो मुझे यहाँ पे एक अपना यूजर नेम पासवर्ड बताना पड़ेगा. So if it is there, it will take me to that place. So this is that higher education, and the type of assessment that I wish to go for. ये यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी. तो यहाँ पे जैसे मैं क्लास नेम दूँ, तो दिस ऑल आर द गूगल क्लासरूम्स दैट आई एम हैविंग इनटू माय अकाउंट. मेरे इंस्टीट्यूशनल आईडी के अकाउंट पे इतनी सारी क्लासरूम्स है. मैं कोई सा भी क्लासरूम सेलेक्ट करूँ तो वहां से जितने भी बच्चे क्लासरूम पे ज्वाइन किए होंगे वो यहाँ पे फेच हो जाएगी. ठीक है. इफ यू जस्ट लुक एट इनटू दिस, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो दिस इज जस्ट अ फ्री ट्रायल. ये एक सिंपल सा फ्री ट्रायल है. कितने ग्रेडिंग मैं अभी तक के कर चुका हूँ? तो आई एम जस्ट डूइंग ओनली 1 ग्रेड, मतलब मैंने एक बार ही ग्रेडिंग किया. मैंने पर्सनल पे किए हुए हैं या फिर मैंने इंस्टीट्यूशन पे भी सेकेंड आईडी से किया हुआ है. सो दिस इज जस्ट फॉर अ डेमो पर्पस. एक सिंपल सा डेमो पर्पस के लिए अलग अकाउंट से मैंने लॉग इन करके आपको बताना है. तो दिस इज समथिंग दैट वी विश टू डू फॉर. ठीक है. अब एक बड़ी छोटी सी असाइनमेंट हम लोग करके देखते हैं. ग्रेड क्लास सिंपल सा एक कर लेते हैं. ग्रेड ऐसे हम लोग एक ऐसे ग्रेड कर लेते हैं. आई विल से क्रिएट मैन्युअली. मैं अपने लिए मैन्युअली क्रिएट कर लेता हूँ, और अगर मैं मैन्युअली क्रिएट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे हायर एजुकेशन ग्रेड का मिल जाएगा. क्लास नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ. लेटेस्ट से JIT FDP. This is my class name. Assignment name essay writing ये दे देता हूँ. Prompt, this is the prompt for your student. आपके स्टूडेंट के लिए prompt होना चाहिए. Do not give instruction to Co-Grader here. इस AI tool को यहाँ पे instruction देने की जरूरत नहीं है. This is something that student would come to know. ठीक है. अब यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग काम करते हैं. Why you have selected MBA. इस पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि यार बच्चे ने ऐसे लिख देना चाहिए, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कि आपने MBA क्यों किया, इस पे ऐसे लिखिए और आप उसको आंसर कीजिए. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बोल देते हैं, राइट एन essay on why you have
सिलेक्टेड MBA, इतना कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स अगर आपको ऐसे लगता है कि इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को किस फॉर्म में किसी बंदे ने प्रेजेंट करना चाहिए, लाइक अगर मैं रिसर्च पेपर का एब्स्ट्रैक्ट अगर बात करूं तो मैं पर्पस होना चाहिए, उसमें मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, फाइंडिंग्स होनी चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी क्या होनी चाहिए, कीवर्ड होने चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑल दिस थिंग्स शुड बी देयर एंड इट शुड हैव अ डिफाइंड फॉर्मेट, तो आप एक सोर्स डॉक्यूमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। अब हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम लोग यहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को अगर इसको असेस करना है तो हम लोगों को एक रूब्रिक सिलेक्ट करना है। मैं अगर को ग्रेडर का रूब्रिक यूज करूँ तो वही यूज करूंगा, इफ नॉट तो मैं सिलेक्ट डिफरेंट रूब्रिक, मैं यहाँ पे अलग रूब्रिक डिफाइन करना चाहता हूँ। अब अलग रूब्रिक अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्रिएट रूब्रिक करके बटन है, जो शायद यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रही होगी, तो इट इज लाइक क्रिएट रूब्रिक। तो क्रिएट रूब्रिक में अगर मैं जाता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो क्रिएट रूब्रिक में यहाँ पे आएगा import rubric. If you have already a rubric definition, you can import that. If you wish to create it manually, आप manually create कर सकते हो। आप create with AI, आप AI के साथ create करना चाहते हो तो AI के साथ create कीजिए। I'll say I'll not be creating it manually, I'll be creating it with AI. Describe the rubric you want to create. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपको यहाँ पे अगर दिख सकता होगा, अगर नहीं दिखता है तो मैं पढ़ लेता हूँ। एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि for 10 graders that will write essay about the book The Great Gatsby, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ for MBA graduates writing essay on why you have chosen MBA, ऐसा कुछ है। मैं क्राइटेरिया अगर डिफाइन करना चाहता हूँ तो क्राइटेरिया मैं डिफाइन कर लूँ कि क्राइटेरिया क्या है। तो मुझे क्राइटेरिया खुद ही बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन इफेक्टिवनेस चेक करना है, या थीसिस स्टेटमेंट चेक करना है, या टॉपिक स्टेटमेंट चेक करना है, या पैराग्राफ स्ट्रक्चर चेक करना है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चेक करना है। I'll say essay organization is my description that AI should understand, and I'll just say submit. Submit करने के बाद एक just need to wait because it is defining the rubric. So this is the rubric that it has defined. अब ये rubric जैसे define कर लिया तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं JIT essay. So this is the rubric that we have defined and we need to rename them so that we should understand and remember it. तो हम लोगों ने एक ऐसे define कर लिया। Now you can see that every criteria is being defined, मतलब हर वो criteria यहाँ पे define किया है। अब जैसे पहला criteria clarity and focus, this is the rubric. AI has already defined that it presents a clear central idea early in the essay regarding the choice of an MBA and focus on providing it or proving it. तो इसको यार 2.6 मार्क्स कैसे मिलेंगे या फार बिलो एक्सपेक्टेशन कैसे रहेगा? सो इफ इट डोंट डेमोन्स्ट्रेट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइटेरिया एंड डिस्प्लेस लिटिल टू नो ग्रास्प ऑफ द रिक्वायरमेंट, तो इसको इससे नीचे मार्क मिलेंगे 2.6 से। फिर बिलो एक्सपेक्टेशन होगा तो 3 मार्क, फिर अप्रोच एक्सपेक्टेशंस होगा तो 3.4 मार्क, फिर इफ इट मीट्स टू द एक्सपेक्टेशन इट मे टेक 4 मार्क्स। ये फिक्स लेवल है। फिक्स लेवल मींस 2.6, 3, 3.4, 4। इफ यू डोंट नीड एनी रूब्रिक यू कैन डिलीट इट, आप उसको डिलीट कर सकते हो। आप वेरिएबल लेवल बनाना चाहते हो तो वेरिएबल लेवल बनाइए। हर क्राइटेरिया में, हर रूब्रिक में आप मार्क्स उसको चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर 2.6 नहीं है, यू विश दैट इट शुड बी फार बिलो, मतलब उसको कम से कम यार 2 तो दे दो, मतलब इतना तो कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। सो इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे करना चाहते हो। वंस यू आर डन विद दिस यू जस्ट से सेव रूब्रिक। रूब्रिक सेव हो जाएगा। जैसे ही आपने रूब्रिक सेव किया यू वुड स्टार्ट गेटिंग द रूब्रिक ओवर हियर। आपने यहाँ पे रूब्रिक ले लिया, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने रूब्रिक सेव किया है और वो रूब्रिक के सारे डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द केस, नाउ लेट अस से दैट व्हाई यू हैव चोजन MBA। मतलब ये सिंपल सा फंडा है। किसी ने क्या किया, मेरे जैसे ही बच्चा है,
अब उसने क्या किया कि सीधा इंटरनेट पे आया और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पूरा टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया. आई हैव जस्ट कॉपीड दिस थिंग. आई वेंट टू वर्ड फाइल. मैं वर्ड फाइल में चला गया क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया था. आई विश दैट स्टूडेंट शुड जज अपॉन दिस थिंग. सो दिस इज वर्ड फाइल. मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, खुद का नाम वगैरह दे दिया, सब कुछ कर दिया. आई एम सेविंग दिस. मैं इसको सेव कर लेता हूँ. सेव करते हैं. लेट अस सेव इट ऑन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप कहाँ गया? सो दिस इज द डेस्कटॉप. JIT essay डेमो वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर लिया और मैंने यही चीज आपको अपलोड कर दी. मीन्स आई हैव अपलोडेड दिस थिंग. अब यहाँ पे क्या हुआ? ग्रेडिंग पैरामीटर. आपको ये बताना है कि ये ग्रेडिंग पैरामीटर्स कैसे होंगे, मतलब आपका रिगर कितना है, आप टॉलरेंट हो, बैलेंस्ड हो, स्ट्रिक्ट हो, ऑटो रखना है, रीडिंग लेवल आपकी कितनी आप रखना चाहते हो, आपका लेंथ कितना चाहिए, आपका टोन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें हो सकती है. ठीक है, दैट यू नीड टू सेट अपॉन, वो आप सेट करोगे. स्टिल इफ यू विश टू गो विद द एडवांस रूल, तो एडवांस रूल फ्री में नहीं मिलेगा, आपको प्रीमियम आइटम परचेस करना पड़ेगा, तब आप लोगों को वो एडवांस रूल में भी मिलेगा. अब स्टूडेंट ने आपको सबमिट कर दिया है. सिंस इट इज नॉट अमेलगमेटेड विद द गूगल क्लासरूम, आई एम यूजिंग द सेम वन व्हिच आई हैव जस्ट सेव्ड on desktop from device. I'm selecting this grade. So this is desktop and JIT essay demo. I am using that. मैंने इसको यूज कर लिया और अब मैं डन बोल देता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को इसको सेव हो चुका है ये, एंड रिक्वेस्ट इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं और इसको चेक करते हैं कि इसने क्या ग्रेडिंग परफॉर्म किया है. ठीक है, अब इसके रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, नाउ यू कैन सी स्टेटस. अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो हियर यू वुड बी गेटिंग द स्टेटस इन लाइन टू बी ग्रेडेड. प्लीज वेट. अब ये बच्चे ने बहुत सारी चीजें जो सबमिट कर दी है, एंड वी आर जस्ट वेटिंग दैट इट वुड गेट क्लियर एंड इट वुड जनरेट द analysis for it and it would generate the grading for it. मतलब वो automatically based on the rubrics उसके marks judge कर लेगा और हम लोगों को एक present कर देगा. Just wait, since it is an analytical tool, that too AI based, it would take its own time and it would mapping with it with the rubric that we have already defined. But this is something good. Means if you want to go with the qualitative assessment, this is really good. Means मैंने करके देखा है. आपके पास अपना भी एक्सपीरियंस होगा. मतलब मुझे ये X पता है, आपको शायद Y पता होगा, किसी को Z पता होगा. We all are here to share the thing. आप में से किसी ने यूज किया है कोई AI assessment tool? Please share. Meanwhile, we are ready with the output. So graded and need review. So now you see that 4 parameters were defined. 4 पैरामीटर्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे. द हाईएस्ट वैल्यू वाज 4. तो 4 पैरामीटर्स और इन द रूब्रिक वाज ऑफ 4/4. 4 मार्क्स वाज हाईएस्ट मार्क, 4 पैरामीटर्स वाज देयर, सो 4/4 16. तो इस बंदे ने जिसने कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, इसको इस पर्टिकुलर सिस्टम ने AI असेसमेंट ने कितने मार्क्स दिए? तो इट हैज गिवन 5.2 मार्क्स. अब कैसे होता है वो भी देखते हैं. सो graded needs review. अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखे तो you can see this thing. आप इसको चेक कर सकते हो. क्या चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका फीडबैक आया है. You can share this feedback with the student also. ये आपका फीडबैक भी शेयर कर देगा. अब एक since it is free one, मतलब दिन में एक ही बार इसका ट्रायल मुझे मिल जाता है, तो यहाँ पे मुझे प्लेगरिज्म नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे लिख के आया है नो क्रेडिट्स लेफ्ट. AI डिटेक्शन भी वो करके देता है. यहाँ पे लिख के आया है नो क्रेडिट्स लेफ्ट, जस्ट बिकॉज सिंस इट इज अ फ्री वर्जन एंड वी कैन यूज 1 इटरेशन पर डे. एक तो फिर पूरे के पूरे मतलब 26, 30, 40, 60 आप अपलोड कर दो और फिर उसको एक बार ही यूज कर लो, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे दिख जाएगी. ठीक है, सो द समरी. अब यहाँ पे दिस द वन विच इज अपीयरिंग ओवर हियर, दिस इज द ओरिजिनल वन मीन्स द स्टूडेंट हैव अपलोडेड, और एज पर द फीडबैक और द असेसमेंट एक समरी जनरेट हुई है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो. अब
पहला रूब्रिक क्लेम एंड फोकस, तो क्लेम एंड फोकस में बंदे को मिला हुआ है स्कोर 1.3। फिर इसके बाद सेकेंड रूब्रिक है एनालिसिस एंड एविडेंस, बंदे को मिला है 1.3। फिर अगेन थर्ड पैरामीटर ऑर्गेनाइजेशन, इट अडेयर्स टू द फॉर्मल एसे स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एंगेजिंग इंट्रोडक्शन, कोहेरेंट बॉडी पैराग्राफ, एवरीथिंग। सो जो भी आपने रूब्रिक एआई बेस्ड डिफाइन किया हुआ है, तो उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर, मतलब बच्चों को ये ना लगे कि कुछ भी मार्क्स दे दिए विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आता है। यू कैन शेयर इट विद द स्टूडेंट ऑल्सो। तो इसको ऐसे सारे मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे मिल गए। नाउ इफ यू विश टू मैनेज, यू कैन मैनेज दिस थिंग ऑल्सो, आप इसको भी मैनेज कर सकोगे, बट यू नीड टू एडिट दैट। आपको उसको को ग्रेडर रूब्रिक में जाके एडिट करना पड़ेगा। आपको ग्रेडिंग पैरामीटर्स भी अगर स्ट्रिक्ट टू बैलेंस करना है या टॉलरेंट करना है, रीडिंग लेवल आपका मैनेज करना है, तो यू कैन मैनेज दैट, आप उसको भी मैनेज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ द एआई असेसमेंट कुड बी डन फॉर अ क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क। मतलब अगर कोई क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क आपके पास है, तो एक जस्ट एन एग्जांपल है को ग्रेडर करके, जिसके साथ आप ये कर सकते हो। And here you can get everything, means what is the level of grammar, how much plagiarism it would be having, and how much AI it is having. तो ये आप बच्चे के साथ भी शेयर कर सकते हो, so that आपके पास एक क्लियर एविडेंस भी रहेगा, जिसको आप शेयर करोगे तो बच्चा भी समझेगा कि नहीं, अब वो इतना आसान नहीं है कि जस्ट मियरली कॉपी पेस्ट करके हम लोग यहाँ पे आके सबमिट कर दे। So this is just a simple demo. There are many different tools that you would be using. आप बहुत सारे अलग अलग tools भी use कर सकते हो। तो एक जो कल मैंने समझा कि एक छोटा सा hands on भी होना चाहिए, तो this was an hands on for this. So this is how the AI based assessment would be there. Means we can incorporate this into our regular teaching. हमारे regular teaching में इसको हम लोग incorporate कर सकते हैं, right? So this is all from my side for today's session. And again, I would really say sorry. Perhaps now, जितना join किया था उसमें से सिर्फ आधे लोग बचे हैं. So perhaps I'm not up to that mark. This is what I'm getting a feeling like this, right? चलो, still, if you have any question, please do ask. Sir, first of all, that's not the case. It might be कि online है उसके हिसाब से और evening hours हैं, तो probably they might not have joined today. Yeah, it was just... Sir, whatever we are doing right now, while assessing the assignments and the different assessment tools जो भी हम use कर रहे हैं, चाहे case study हो या quiz हो, तो AI tool तो अभी तक हमने use नहीं किया है, to be very honest with you. So like this is the first time we get to know the कि assessment भी AI tools के through हो सकता है. So definitely आपका जो आज का session है, वो हमको और बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करता है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि इनटेक भी बढ़ रहा है कॉलेजेस में, तो हमारे लिए भी डिफिकल्टीज बढ़ रही है, तो ये हमको हेल्प कर पाएगा. दैट इज व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम टुडेज सेशन सर. जी नहीं मैम, ये तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि फॉर द एज ऑफ फैकल्टी, ये हर फैकल्टी ने खुद को अपग्रेड भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम लोग इसके साथ नहीं चलेंगे, perhaps everyone else is going with this. Exactly, sir. You want to switch on to some other institute and they are looking something as a part of novelty within your assessment or delivery or content, then what we would be describing them. हम लोगों के पास क्या होगा कि हम लोग बेहतर तरीके से उनको describe कर सकेंगे. तो perhaps मुझे ऐसे लगता है कि means keeping pace with the time and moving ahead with some good and competitive kind of thing. तो हम लोगों ने खुद को अपग्रेड करना भी ज्यादा जरूरी हो गया है, और चीजें अवेलेबल है. ये होगा कि शायद आप नहीं यूज कर रहे हो, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि कोई नहीं कर रहा है. someone else directly using that. जी राइट सर, राइट सर. मनोज सर, कोई कमेंट, आपकी टिप्पणी? नहीं सर, कमेंट्स नथिंग, इट वाज वेरी गुड. सेकंड थिंग, मेरा एक छोटा सा क्वेरी था कि हम लोग मैनुअली ये सब प्रोसेस करते हैं, व्हाटएवर यू हैव सेड सर. तो there are various parameters to give to marks when we are talking about the internal assessment sir. So जैसे क्लास टेस्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, there are some presentations also sir that the student have to submit. और उसके बाद में कैसा होता है कि हमें क्लास टेस्ट के भी मार्क्स हमें उनको देने होते हैं. तो क्या ये सब हम एक्सेल शीट में सर क्या होता है कि there are different sheets we maintain, और एट दी एंड हम लोग क्या करते हैं, उसको सीओ को और पीओ को अटेंड करते हैं सर.
तो क्या ये प्रोसेस हम नहीं, सेम चीज जगह यूज कर सकते हैं? मनोज, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। अटेंड करना ये शायद हमारी मजबूरी है, इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं जी। मतलब इफ यू डू इट रिलीजियसली, कितने अटेंड होते हैं ये आपको खुद भी पता है कि कितना हो सकता है। जी सर, जी। इफ यू विश टू इनकॉर्पोरेट द सेम थिंग विद दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, यू कैन डू दैट, आप उसको भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें कैसे होगा कि परहैप्स द एग्जांपल दैट आई हैव शेयर्ड इज को-ग्रेडर, इसमें नहीं होगा। जो मैंने आपको बताया था द सेकंड वन, परहैप्स दैट इज वेरी गुड व्हाइल यूजिंग दैट। आप उसको अगर यूज करें तो उसमें शायद आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक सेकेंड, एक केसे क्राफ्ट करके भी है, और एक आखिरी का मैंने जो बताया था दैट वाज लाइक टास्केड एआई। So this you can amalgamate with the COPO mapping itself. होप सो सर, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ अगर इफ पॉसिबल। सो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग द सेम, because this is the first things, as I already said ki we do it by manually, but the second thing when we talk about the AI, तो obviously कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, तो जस्ट माफ करिएगा सर, आपको उतने समय डिस्टर्ब करेंगे और कुछ नहीं। नहीं, बिल्कुल करो यार। मीन्स वी आर इनटू एकेडमिक फर्टिनिटी, वी शुड हेल्प ईच अदर। हम लोग हर एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत छोटे सर्कल में वो छोटा सर्कल छोटा छोटा होते होते एक सिंपल छोटा सा डॉट बन के रह जाएगा। वी नीड टू एक्सपैंड अवर सर्कल। थैंक यू सर, थैंक यू। Yes, Sanika. I have a question. सर, जैसे हम मैन्युअली जब भी आंसर्स देखते हैं तो हर एक स्टूडेंट के अलग अलग आंसर हो सकते हैं। Yes. और उसमें हम आइडियल आंसर कौन सा है ये हमें पता है, पर कभी कभी काफी क्रिएटिव भी रहता है। मतलब ये ऐसे नहीं कि ये आइडियल आंसर है, पर कुछ स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा अलग लिखते हैं उनके हिसाब से। तो एआई में जब भी हम आंसर एक रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो क्या उसका एक दूसरा भी उसको अफेक्ट कर सकता है मार्किंग को? या फिर उसको कुछ एक लिमिटेशन है कि आंसर इतने ही वर्ड्स का होना चाहिए, या कैसा, ऐसे कुछ है क्या उसमें? मतलब नहीं, it all depends with the limitations of the AI tool that we want to use. This is one thing. Second, means the one which you are talking about is the creativity. So perhaps AI won't understand the creativity and the context, but if you wish to go with that, तो कुछ AI tools उसमें मतलब इक्विप्ड होते हैं सिमेंटिक एनालिसिस और सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ। सो इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट दैट, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट आल्सो। लेकिन ये जो सिमेंटिक या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस वाले वगैरह जो टूल होंगे ना, ये फ्री आपको मिलेंगे नहीं। मतलब एक इटरेशन दिन भर में मिलेगा, सिर्फ एक बार एक आंसर शीट के ऊपर मिल जाएगा, या एक इंस्टेंस के लिए मिल जाएगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव है, काफी सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना लिखने का तरीका अलग होता है। हमारा उसको देखने का तरीका अलग हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि सर को पोंछने के लिए कपड़ा चाहिए, तो ये मतलब आप एआई को भी पूछेंगे तो शायद एआई उसके कितने मीनिंग ड्रॉ करके बताएगा, ये नहीं पता चलेगा हम लोगों को, बिकॉज द थिंग्स आर वेरी कॉन्टेक्चुअल। वो कॉन्टेक्चुअल, क्योंकि एआई कैसा है, एआई इज जस्ट लाइक अ स्टैटिस्टिकल मॉडल, एक सिंपल स्टैटिस्टिकल मॉडल है। एक बेहतर या बेस्ट अप्रोक्सीमेशन स्कोर वो आइडेंटिफाई करके उसका जो एक्शन एसोसिएटेड होगा या जो मीनिंग एसोसिएटेड होगा वो उसको फाइंड आउट करके उसको रिप्लाई करेगा। तो अब अगर मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिस बंदे ने बहुत क्रिएटिवली लिखा होगा, बट परहैप्स एआई वुड अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द राइट आंसर, और दिस इज नॉट सुटेबल, और दिस इज नॉट कॉन्टेक्चुअल विद द क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग आस्क्ड, तो वो इसको मार्क नहीं देगा। अगर वो रूब्रिक बेस्ड होगा तो रूब्रिक आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, आपने उसको पहले से ही बांध के रखा हुआ है, तो वो रूब्रिक के बाहर अगर जाके सोचना नहीं चाह रहा है तो नहीं करेगा, वो उसको आंसर इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा। दिस मे बी द लिमिटेशन, ये लिमिटेशन हो सकता है, बट काफी रिस्ट्रिक्टेड लगता है। हाँ, बट again we need to explore the things, क्योंकि since we are not pro, we have just started using it, but sooner or later ऐसा नहीं है कि ये टीचर को रिप्लेस कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। So we are with AI and we would be using this for the means better improvement for ourselves only. True. Thank you, sir. If anyone else has question, you can ask.
Perhaps I these think are, this is already yes, resolved all the queries. perhaps these all are the things or the practices means that cannot be done or could be means express or means experience online. ये जब तक कि हम लोग ऑफलाइन खुद होके करके नहीं देखेंगे हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, तब तक शायद हम लोग उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. Yes, sir, that is true. But anyways, this 2 days was a good experience क्योंकि मुझे खुद ये सीखने को भी मिला, मैंने खुद करके देखा. I'm really thankful to Mubina ma'am for giving me an opportunity. Thank you Vishakha, thank you Bhavna ma'am, so that means we have got a good platform to discuss something new and that पता नहीं मतलब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि whether it have contributed to some extent to you, लेकिन मैंने कोशिश ईमानदारी से की. Yes, sir. Of course, it has added value to our knowledge. So definitely worth it session hai. Thank you very much. Mubina ma'am, should we move ahead? That's it, sir. Bhavna ma'am, you may conclude and formally Sure, you can ma'am. present the vote of thanks. Yes, ma'am. So on behalf of JIT and the FGP organizing team, I extend my sincere gratitude to Dr. Rahul Vijay Mohari for such an insightful and forward-looking session on designing AI-enhanced assessment and feedback systems. Thank you for generously sharing your expertise, experience, and vision, sir. We are confident that today's session will have a lasting impact on our teaching and assessment practices. I would also like to thank all the participants for their active presence and engagement, and the organizing team for their smooth coordination. Once again, thank you everyone and wishing you all a great day ahead. Special thank you to Rahul sir, our HOD Mubina ma'am, and our PQAC Dr. Vishakha Mankar ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Good night and Thank you and good night. yes. Participants, we'll meet tomorrow. Bye. Thank you.